Salutation to the God. God, actually we are. We are actually God. This is the conclusion of Gita. This is the conclusion of Vedanta. According to Sanskrit, the name Vedanta, Gita, according Sanskrit language, Gita, uh, etc. Uh, the book of Gita, the most famous of the world, actually the base of Gita is Ved, Sanskrit word Ved Vedanta. The base uh, is base of Gita is Ved, and conclusion of Ved, that is Vedanta. We are God, God we are. For this, I am saying from the conclusion of supreme spiritual books, supreme scriptures, from the conclusions of Upanishad philosophy, Sanskrit name Upanishad, Upanishad philosophy, according the conclusion of Upanishad philosophy, according famous world teachers like Ved Vyas, like that Vasishtha, like that Pratham Jagat Guru Shankaracharya, first Shankaracharya, and according Ram Gita, according Sri Krishna Gita. Gita means Sri Ram Gita, Sri Krishna Gita, Brahma Gita, Ashtavakra Gita, Abdut Gita, etc. Conclusion from this all world teacher, religious famous world teacher, the ancient teacher Ved Vyas, and modern teacher Dr. Kshitisha, according the teachings of these all, I am saying now that we are God, God we are. According Sanskrit, four words, Paramananda, Paramatma, Brahma Chaitanya. Four words, according Sanskrit, or we can say according Hindi language, according Nepali language. That is Paramananda, Paramatma, Brahma Chaitanya. According this, we are God, God we are. We should know this clearly, because the life of man and woman very, very valuable. The present time very, very valuable. So we should use the valuable time that is present, that is now. The top spiritual books of the world, according that God we are God. We should
realize this because it is fact. Now I describe in Hindi language and in Nepalese language. Today means 2024, December, today last 31. Today Tuesday, according Hinduism, Paush Shukla Paksha Pratipada, today Mangalvar, according Nepali Vikram Samvat date 2081, month Paush and Gate date 16 Sora Mangalvar. This presenting by President of Immortal Pleasance Center and Nepali Adhyaksha Akhanda Sukha Kendra from Nepal country, from Nepal Bhairava city, from Parasi city, from Nepal Palpa Tansan city, from Nepal Butol city. Now, I expressing that we means the people of the world, all, either children, either young, either adults, all. Actually, God, we are God. Now I present proof how we are Paramananda Paramatma Brahma Chaitanya. These words according Sanskrit, Hindi and Nepali. Paramananda Paramatma Brahma Chaitanya. अभिवादन परमात्मा का। परमात्मा ही हम सब का असली स्वरूप है, ये अभी जानना होगा। कैसे जाने? जानने का आधार है गीता का तात्पर्य से। गीता मतलब कृष्ण गीता, श्री राम गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, ब्रह्म गीता, there are many Gitas. The conclusion of this Gitas, ये सब जो है गीता का तात्पर्य, गीता है वेद का अभिव्यक्ति। गीता है वेद का अभिव्यक्ति। इसको जाना जाता है वेद का तात्पर्य जो वेदांत है उसके अनुसार जो उपनिषद दर्शन है। इसलिए जो हम अभी कह रहे हैं इसका आधार है ब्रह्म सूत्र, जिसको प्राचीन वेद व्यास ने बनाया है। और जो कह रहे हैं अर्वाचीन आधुनिक वेद व्यास, डॉक्टर क्षितिश विश्वगुरु, उनके आधार पर हम कह रहे हैं भगवान वशिष्ठ, तीन लोक का गुरु वशिष्ठ, उनके अनुसार कह रहे हैं। प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य, उनके अनुसार तात्पर्य अनुसार हम कह रहे हैं। जो पुराणों हैं 18 महापुराण, उसका तात्पर्य से हम कह रहे हैं। जो महाभारत है, रामायण है, महारामायण, योग वासिष्ठ महारामायण जहाँ 32,000 श्लोक है, इसका निचोड़ हम कह रहे हैं। हम जो कह रहे हैं ये जो मुक्ति शास्त्र के आधार में जो संसार में सबसे प्रसिद्ध है, वो तात्पर्य है कि हम लोगों का स्वरूप है परमानंद, परमात्मा, ब्रह्म चैतन्य। परमानंद मतलब आनंद का हद, आनंद ही आनंद, केवल आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। यह है परमात्मा का स्वरूप, यह है ब्रह्म का स्वरूप, यह है ब्रह्म चैतन्य का स्वरूप, जो हम लोगों का हमारा असली स्वरूप है।
इसको जानना होगा। अगर न जाने तो मनुष्य का जीवन बेकार है। बिल्ली कुत्ता के जैसा तरह बिल्ली कुत्ता के तरह बीत जाएगा अगर इस उपदेश को न लिया जाए। इसलिए आदमी होकर, आदमी का जन्म पाकर फिर इसका भरोसा, इसका समय शाम तक नहीं है, कल तक नहीं है, इसको भी ख्याल करना होगा। क्योंकि कई एक्सीडेंट हो सकता है, कई घटना हो सकता है। जब भी जो भी व्यक्तिगत रूप से जा सकता है, इसके अंदर अपना शरीर भी हो सकता है। क्योंकि मौत शरीर का केवल दूसरे का नहीं, अपने का भी है। इसको मद्देनजर रखना होगा। और इसका जो निश्चय है, कल परसों तक, शाम तक, 1 घंटा तक भी पक्का नहीं है। इसको मद्देनजर करके जो असली बात है, जो शास्त्रों ने कहा गया है, जो अनुभव में जचता है, जो सही है, उसको अभी लेना होगा। जो केवल आनंद, आनंद ही आनंद जो परमात्मा है, इसका नाम ब्रह्म चैतन्य है। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है, इसको जानना होगा। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। ब्रह्म का मतलब शिव है, अविनाशी है। शिव ब्रह्म को वेदांत कहता है एक ही है। शिव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शिव है। और सर्वोच्च शास्त्र कहता है, वेदांत कहता है, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। एम आत्मा ब्रह्म, आत्मा अमर है। आत्मा वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है, जो अमर है, जिसको नाश कभी नहीं होता है, जो अलग से है, एक है, परिपूर्ण है, अविनाशी है। इस तरह से ब्रह्म चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, इसके बारे में हम लोग जानना होगा। लेप्टी भाषा में वर्णन करेंगे। ब्रह्म चैतन्य त्यो वस्तु हो जो सधैँ निर्विकार छ, जो सधैँ सतरूप हो, जो सधैँ चैतन्य रूप हो, जो अद्वितीय हो, अर्थात योदेखि बाहेक अर्को कुनै केही छैन। यस्तोलाई ब्रह्म चैतन्य भनेर हामीले जान्नु पर्दछ। अर्थात जो सधैँ निर्विकार हो, विकार रहित, सधैँ सतरूप, सधैँ चैतन्य रूप, सधैँ आनन्द रूप, यो अद्वितीय हो, यसमा दोस्रो वस्तु वास्तवमा छैन। यसको नाम हो ब्रह्म चैतन्य। यही नै सारा संसार उत्पन्न भएको छ, यसैमा सारा संसार उत्पन्न भएको छ। सारा संसार जड हो, चैतन्य हो ब्रह्म। ब्रह्म चैतन्य जो प्रकाश रूप हो, यसैबाट सारा संसार प्रकाशित भइरहेका छन्। किनकि भौतिक शरीर संसार जड हो, जड। चैतन्य हो ब्रह्म। त्यसैले सारा जो उत्पन्न भएको छ, यही ब्रह्म चैतन्य उत्पन्न भएका हुन्। र सारा जो जानकारी हामीलाई प्राप्त भइरहेका छ, त्यो ब्रह्म चैतन्यबाट मात्रै हो। किनकि चैतन्य ब्रह्ममा हुन्छ, चैतन्य जड वस्तुमा हुँदैन। भौतिक शरीर संसार जड हो, त्यसैले सारालाई प्रकाश गर्ने चैतन्य ब्रह्म हो। त्यसकारणले सारा प्रपञ्चको अधिष्ठान केवल ब्रह्म चैतन्य हो। यही ब्रह्म चैतन्य नै शरीरमा प्रवेश गरेर सारा चित्तवृत्तिहरूलाई प्रकाश गरेर साक्षी चेतन रूपले रहिरहेर साक्षी चेतनले सारालाई प्रत्यक्ष अनुभव गरेर, असङ्ग रूपले अनुभव गरेर छिनछिनमा साक्षी चैतन्य ब्रह्म चैतन्यमा आफ्नो मूल स्वरूपमा विलय भएर रहिरहेको हुन्छ। यस प्रकारले ब्रह्म चैतन्य सदा सबैको स्थिति हो। त्यसकारणले सुरुमा पनि ब्रह्म चैतन्य मात्रै हो, बीचमा पनि
उत्पन्न शरीरभित्र प्रवेश गरेर सारा जो 3 विभाग तम रज सत्व जो छ यी सारा चित्तवृत्तिहरूलाई प्रकाश गर्ने पनि यो शरीरभित्र प्रवेश गरेको ब्रह्म चैतन्य, त्यही ब्रह्म चैतन्य यो उत्पन्न कल्पितको प्रसङ्गबाट साक्षी चैतन्य भनिएको हो। साक्षी चैतन्यबाट प्रकाशित हुन्छन्, द्रष्टामा दृश्य हुन सक्दैन। त्यसैले साक्षी चेतन जहिले पनि साक्ष्यदेखि रहित केवल असङ्ग चैतन्य मात्रै हो। र यसरी सारा शरीर बाहिरका वृत्तिहरूलाई र शरीरभित्रका काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वृत्तिहरूलाई सधैँ प्रकाश गरेर प्रकाशक जो साक्षी चेतन हो, जो सधैँ असङ्ग हो, यो सधैँ आफ्नो मूल स्वरूप ब्रह्ममा लय भइकन ब्रह्म रूपमा रहिरहेको हुन्छ। यसैले सुरुमा पनि ब्रह्म चैतन्य, बीचमा पनि सारालाई प्रकाश गरेर रहिरहेको असङ्ग साक्षी चैतन्य ब्रह्म चैतन्य नै हो। र सारालाई प्रकाश गरेर, किन प्रकाशित वस्तु रहिराख्दैन, आउँछ जान्छ, आगोमा पाइयो, तर सारालाई प्रकाश गर्ने र साराको जो अभावमा बाँकी रहन्छ केवल ब्रह्म चेतन, जसलाई ब्रह्म चैतन्य भनिन्छ, जो आनन्द आनन्द हो, जो परमात्मा हो। यही हामीहरूको सबैको, संसारका हामी सबै यथार्थ स्वरूप हो। यसलाई लिएरै हाम्रो जीवन मुक्त हुन्छ, देह मुक्त हुन्छ। यसरी मनुष्य जीवन पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ। अहिलेलाई यति नै गरौँ। हरि ओम तत्सत।